A happy morning to my dear students. Welcome back to your maths online class. Students, we have completed chapter 5 fraction. We did the activity also to understand the fraction well. So students, today we will start a new chapter named measurement. Students, you have already learned about measurement in previous class, means class 2nd. Before starting this chapter, we will revise the measurement in short again. What is measurement? Measurement है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? इन हिंदी measurement को माप बोलते हैं. तो ये माप या measurement है क्या? So measurement is the elementary information about everything. Length, weight and volume are measured in appropriate units. SI units also belongs to the measurement chapter. SI units stands for International System for Units. SI units means International System for Units. जब मेज़रमेंट की बात होती है तो हमारे माइंड में बहुत से मेजरिंग यूनिट्स आते हैं, जैसे कि डेली लाइफ में हम बोलते हैं ना 1 ग्लास ऑफ वाटर, 1 बाउल खीर, 1 pinch salt, 1 spoon of sugar, 1 kg of potato, 1 liter milk, है ना, and so on. Can you imagine what is the difference of these units? सब मेजरिंग के लिए ही यूज़ हो रहे हैं, लेकिन क्यों ये डिफरेंट है? क्यों इसे हम किसी को लेंथ में पढ़ते हैं, किसी को वेट में और किसी को हम कैपेसिटी या वॉल्यूम के अंडर में पढ़ते हैं? ओके, सो इन सारे डाउट्स को हम इस लेसन में क्लियर करेंगे. So students, before moving ahead with measurement, we should talk about standard and non-standard measurement. अब standard और non-standard measurement क्या है, हम इससे भी पहले जान लेते हैं. So students, we need to measure many different things in our daily life, right? If we talk about our day-to-day life, we know that there are a lot of things which we need to measure. For example, if you have to travel somewhere, you will have to know the distance, okay? Distance from one place to the another. If we have to measure the height of a person, if we have to measure the weight of something, for example, if you have to buy the vegetables from vegetable seller, you will tell that vegetable seller that I need 2 kg of potato, 1 kg of tomato, half kg of lemon, like that, right? So in this way you are telling that how much do you need, and then he will weigh that. If you are buying potatoes, he will weigh potato, then he will give it to you, okay? In this same way, suppose you have to buy a packet of milk, then you have to tell the shopkeeper that I need half a liter of milk, okay? Half a liter of milk, I need 1 liter of milk, okay? So this is the way and this is the term that we used in our daily life, okay? So measurement is so important. So in this way you are telling your requirements, that how much do you need, okay? So these are those measurements which are required in our day-to-day lives. Now come to the non-standard measurement.
Here you can see on your screen a piece of string, hairpins, straws, pencils, erasers, paper clips. These are the non-standard measurement units or the object that we can use for measuring anything. Suppose you have to measure the length of your book, then you can use hairpins, you can use pencil, you can use eraser. Okay, so these are the different objects that you choose according to your choice. Okay, so non-standard measurement, any item that can be used to measure something like paper clips, eraser, blocks, finger spaces, hand spans, feet, stones are belongs to non-standard measurement. Okay, here you can see examples. One pencil is given there. So जब हम इसे ब्लॉक से मेज़र कर रहे हैं तो हमने क्या पाया कि ये जो पेंसिल है वो 15 ब्लॉक्स लॉन्ग है. ठीक है, द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज व्हाट 15 ब्लॉक्स लॉन्ग. ओके, बट जब हम इसे पेपर क्लिप से मेज़र करेंगे, पेंसिल को हम जब पेपर क्लिप से मेज़र करने लगे तो हमारा कितना आ रहा है, 6 पेपर क्लिप्स लॉन्ग ये पेंसिल आ रही है. ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो जब हमने ब्लॉक से मेज़र किया तो ये 15 आ रहे हैं, और जब हमने पेपर क्लिप से उसी पेंसिल को मेज़र किया तो वो 6 पेपर क्लिप्स आ रहे हैं. तो यहाँ पे डिफरेंस हुआ दोनों में. मेज़र तो हमने पेंसिल को ही किया लेकिन हमने डिफरेंट चीज़ें यूज़ करी है, तो नंबर चेंज आ रहे हैं, नंबर हमारा जो है वो चेंज आ रहा है. ठीक है, आप देख रहे हो सेम पेंसिल को हम मेज़र कर रहे हैं जब ब्लॉक से तो 15 ब्लॉक्स आ रहे हैं, उसी पेंसिल को जब हम पेपर क्लिप से कर रहे हैं तो 6 पेपर क्लिप्स आ रहा है. सो ये है नॉन स्टैंडर्ड, ये चेंज हो रहा है. जब हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो इसके जो नंबर हैं वो चेंज आ रहे हैं. जस्ट लाइक दैट, in next example, the bar means the line which has given there, the bar is 6 hand span long. जब हम हैंड स्पैन से उसे मेज़र कर रहे हैं तो वो 6 हैंड स्पैन आ रहा है, लेकिन जब उसी बार को हम फुट से मेज़र कर रहे हैं तो वो 4 फीट लॉन्ग आ रहा है. तो यहाँ भी आपने देखा कि वो चेंज हो रहा है. जब हमने सेम बार को मेज़र किया हैंड स्पैन से तो आंसर इज 6 हैंड स्पैन्स, लेकिन जब वही हमने फीट को यूज़ किया, फुट को यूज़ किया तो इट इज़ 4 फीट लॉन्ग. सो हेयर आप यहाँ भी डिफरेंस देख सकते हैं. जैसे हमने चीज़ यूज़ की वैसे हमारा आंसर भी चेंज हो रहा है. हमने हैंड स्पैन जो कि बॉडी पार्ट है हमने उसे यूज़ किया तो वहाँ चेंज आ रहा है. फुट की जगह हमने शू यूज़ कर लिया तो हम इसे सिंबल समझ सकते हैं ना, फुट हम पैरों में पहनते हैं तो हम मान सकते हैं कि ये हम फीट ही यूज़ कर रहे हैं, फुट यूज़ कर रहे हैं. सो आप देख रहे हो हैंड स्पैन चेंज है, फुट चेंज है. क्लियर? सो these methods never gave accurate results. मैंने बताया क्यों एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं, बिकॉज ये हम जो ऑब्जेक्ट अपनी चॉइस के हिसाब से ले रहे हैं उसके हिसाब से ये चेंज हो जा रहा है. A non-standard measurement may different from person to person, okay, or with the object which we use to compare. Hence, we need standard units of measurement. ये चेंज है पर्सन टू पर्सन एंड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. इस वजह से स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की ज़रूरत हमें पड़ती है. सो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है? अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट विच हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू and which does not change from person to person or place to place is called a standard unit of measurement. It is necessary to have standard unit of measurement.
जो पर्सन टू पर्सन, हमें ऐसी यूनिट की ज़रूरत पड़ी जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। क्यों? क्योंकि आप सपोज करो आपको चॉकलेट ही सपोज आपको चॉकलेट ही लेना है, तो किसी को स्वीट, सपोज आपको स्वीट लेनी है या चॉकलेट ही लेना है, तो किसी को आप 50 ग्राम दे रहे हो चॉकलेट और किसी को 25 ग्राम ही मिल रहा है। जैसे फ्रैक्शन में आपने कहा था जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तभी वो आपका फ्रैक्शन माना जाता है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब वो फ्रैक्शन है। वैसे ही यहाँ पर जब आपका जो यूनिट है वो ऐसा हो जो सभी माने, तो इसीलिए जो हम कहते हैं कि आधा दे दो, अब हमने आधा किया चॉकलेट को, तो आधे में हो सकता है थोड़ा सा किसी में ज़्यादा चला गया हो, किसी में थोड़ा सा कम गया हो, तो उस आधे को सही से हम मेज़र करें, ज़रा सा भी अंतर ना हो, लड़ाई की कहीं भी गुंजाइश ना हो भाई बहनों में या किसी में, क्योंकि चॉकलेट तो अक्सर भाई बहनों में बंटते हैं तो लड़ाई शुरू हो जाती है ना आपके घर में, तो ये ना होने पाए इसलिए क्या होता है, अगर हमें चॉकलेट को मेज़र करना है तो हम ग्राम यूज़ कर लेंगे, कोका कोला करना है तो हम मिलीलीटर यूज़ कर लेंगे, कॉफ़ी अगर आपकी फेवरेट है तो हम आधा कप और 1 कप में डिफरेंस ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, कोई मिलीलीटर का हम वॉल्यूम को मेज़र करने का हम यूनिट यूज़ कर लेंगे। तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन क्यों ज़रूरत पड़ी है स्टैंडर्ड मेज़रमेंट की? इसीलिए पड़ी है कि जो सबके लिए मान्य हो, जो किसी भी कंडीशन में कोई भी मेज़र करे, कहीं भी मेज़र करे, चाहे वो अपने घर में, चाहे वो स्कूल में, चाहे वो बाज़ार में, चाहे कहीं भी, तो वो अगर 50 ग्राम है तो वो 50 ग्राम आपके घर में भी 50 ग्राम होगा, वही चीज़ आप 50 ग्राम चाहे वो चॉकलेट हो तो 50 ग्राम उतना ही आएगा, अगर वो कुकीज़ हैं तो भी 50 ग्राम उतनी ही आनी है, और वो कोई भी करे कहीं भी करे तो वो मेज़रमेंट आपका 50 ग्राम अगर है, 100 ग्राम अगर है तो वो हर जगह 100 ग्राम ही आएगा, 10 मिलीलीटर है तो 10 मिलीलीटर ही आएगा, 1 लीटर है तो 1 लीटर वो कोई भी मेज़र करेगा, कहीं भी करेगा, किसी भी कंडीशन में करेगा तो वो 1 लीटर ही आएगा, ठीक है। ये होता है स्टैंडर्ड मेज़रमेंट, जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, अगर वो 1 लीटर, 1 केजी, 1 मीटर कुछ भी है तो वो उतना ही आना है, ठीक है। तो एट लास्ट स्टूडेंट आई वांट टू से कि स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड में जो बेसिक डिफरेंस वो यही है कि वो जो नॉन स्टैंडर्ड है इट इज़ चेंज्ड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, बट जो स्टैंडर्ड है वो पर्सन टू पर्सन नहीं चेंज होता, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट तो सवाल ही नहीं उठता। ओके, सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन of measurement that I want to tell you. So आगे जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। So just watch the video, listen to me very carefully and prepare yourself for measurement chapter. Okay, till then students, thanks for listening, goodbye and take care for yourselves and family also.